Excuse me. ایکسکیوز می، السلام علیکم، میرا نام میرال احمد ہے، میں جمال سر کے ساتھ میری میٹنگ ہے. نہیں آئی ایم شیور کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی. سر میرال احمد آئی ہیں. میم آپ کی میٹنگ کینسل ہو چکی ہے. کینسل؟ آپ ایک دفعہ دوبارہ ان سے کنفرم کر لی. میرا نام میرال احمد ہے. میں کنفرم کر چکی ہوں. سر میرال احمد کہہ رہی ہے میں آپ سے ایک بار اور کنفرم کر لوں. ٹھیک، کینسل ہو چکی ہے آپ کی. پوسٹ پون کیا ہوگا، کینسل نہیں ہو سکتی. نہیں آئی ایم شیور کہ بیکاز مجھے خود آپ کی کمپنی کی طرف سے میل آئی تھی. میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. جی بالکل آئی ہوگی آپ کے پاس میل، لیکن آپ کی میٹنگ کینسل ہو گئی ہے. میں 1 سال سے ویٹ کر رہی ہوں اس میل کا، مجھے کل ہی آئی ہے. آپ ایک دفعہ وجہ تو پوچھیں پلیز. آپ اپنے کام سے کام رکھیں. لیکن آپ ان سے ایک دفعہ وجہ تو پوچھیں. آئی ایم شیور کہ کوئی سالڈ ریزن ہوگا جس کی وجہ سے میٹنگ کینسل کی گئی ہے. خود ہی میٹنگ کے لیے بنائے اور پھر خود ہی کینسل کر دیں. نہیں ہی از رائٹ. ورنہ اتنا فارغ ٹائم تو کسی کے پاس نہیں ہے نا کہ آپ پلیز ان سے ایک دفعہ دوبارہ بات کر لیں. مائی آئیڈیاز آر بریلینٹ، دے آر ون آف اے کائنڈ. آپ خاموش ہوں گی تو میں کچھ بولوں گی نا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے میل کر کے بلایا یہاں پہ. آپ کی نیڈ نہیں ہے سو پلیز آپ جا سکتی ہیں. ہم نے کسی اور کا اپوائنٹ کر لیا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ میں ایسے کیسے چلی جاؤں؟ مطلب اتنی بڑی کمپنی، اتنا بڑا نام ہے اور اتنا انپروفیشنل ایٹیٹیوڈ. ایکسکیوز می، بات سنیں پلیز، ادھر آئیں. آپ اس طرح سے آفس میں شور نہیں کر سکتی ہیں. پلیز آپ جائیں ورنہ مجھے سیکیورٹی بلانی پڑے گی. اگر آپ کسی عقل مند انسان سے پوچھیں گی تو وہ یہی کہے گا کہ یہ بہت اسٹوپڈ حرکت ہے. میں اپنے خدا کی ذات کے علاوہ نا اور کسی سے نہیں ڈرتی. کیا آپ مجھے دھمکا رہی ہیں؟ ایکسکیوز می مس، کہ جو سب کچھ ہے نا وہ یہاں پہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. آپ بتا دیں اپنی سینئرز کو، حقدار کو اس کا حق دینا سیکھیں. فنلیس کٹ گیا میرا. پوری تیاری کے ساتھ ثبوت کے ساتھ جانا. تو ملک سے اس بار کہہ دینا کہ ہم صرف گرجیں گے نہیں، برسیں گے، ورنہ بات میں دم نہیں رہتا. سر فیکٹری کے تمام ملازمین نے اسٹرائک کر دی. سر میں نے معاملے کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، معاملے کو سنبھال نہیں پایا. آئی ڈونٹ نو سر، میں نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن سیلز کا ایشو، مشینری کا ایشو، سر لوگ پھر بھی فاطمہ انٹرپرائزز کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ یہاں سے آیا ہوا ایک ایک پیسہ بے یار و مددگار یتیم غریب لوگوں میں بانٹا جاتا ہے. میری ماں کے نام سے بنی اس کمپنی سے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہے یہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں. میری خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. میرے رائیولز مجھے فائنینشلی کمزور نہیں کر پا رہے، اس لیے ایموشنلی ڈچ کرنا چاہتے ہیں. آپ میری جاوید صاحب سے میٹنگ لائن اپ کیجیے، باقی آج کی ساری میٹنگز کینسل کر دیجیے. سر اس کال ریکارڈ کے حساب سے ملک حشمت اور لیکن سر کی بہن سے یہ کنٹینیو رابطے میں ہی تھا. سر بڑی ٹرانزیکشن نظر نہیں آ رہی اس کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی بھی. ورنہ کیوں ان جیسوں کو پبلک کا پیسہ بلیک سے وائٹ کرنے کو دیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو اس حالت میں دیکھ کے بہت دکھ ہوا؟ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جاوید صاحب، میرا تو جو نقصان ہوا ہے وہ میں دیکھ لوں. آپ نے نمک تو میرا کھایا ہے لیکن وفاداری میرے دشمن کے ساتھ نبھائی. لیکن آپ کے حصے میں عمر بھر کا صرف پچھتاوا آیا ہے. ایک بار مجھے معاف کر دو. آخری بار. یہ کیا حرکت ہے علی خان؟ آئندہ نہیں. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. میری ماں کے نام کی طرف بھی کوئی دیکھے میں برداشت نہیں کر سکتا. جو تم کر رہے ہو اسے چھپ کے وار کرنا کہتے ہیں، جو مجھ جیسے خاندانی شخص کو سوٹ نہیں کرتا. علی خان آواز. طاقت، غرور اور وارننگ، یہ سب کیا ہو رہا ہے. علی خان تم حد پار کر رہے ہو. علی خان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ٹھنڈی مگر خطرناک آواز میں کہا، حد تو تم نے پار کی ہے مک. یہ میری طرف سے تمہاری پہلی اور آخری وارننگ ہے. میں اپنی ماں کے نام پر بنائی گئی چیریٹی کو کسی کی ذاتی لڑائی سازش کا حصہ نہیں بننے دوں گا. میں نے کچھ نہیں کیا، تم بلا وجہ الزام لگا رہے ہو. الزام؟ علی خان ہلکا سا مسکرایا مگر اس کی آنکھوں میں سختی بڑھ گئی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جنگ میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، نہ بھائی، نہ دوست، نہ خاندان. جنگ صرف سامنے سے لڑی جاتی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. وہ قریب آیا. اور تم کیا کر رہے ہو؟ سایوں میں چھپ کر وار. یہ کسی عزت دار گھرانے کے لوگوں کا طریقہ نہیں ہوتا. علی خان اپنی آواز نیچی رکھو. آواز؟ تم ابھی آواز کی بات کر رہے ہو، وہ ہنسا مگر تنزیہ انداز میں. تم اس کھیل کا سب سے کمزور موہرا ہو مک، اور تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم نے کس سے دشمنی لے لی ہے. لوگ کہتے ہیں تم طاقتور ہو، حکومتیں بنا اور گرا سکتے ہو. کہتے نہیں، جانتے ہیں. تو شاید میرے لیے بہتر یہی ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ ہاتھ ملا لوں بجائے تمہارے خلاف کھڑے ہونے کے. علی خان کی آنکھیں تنگ ہو گئی. تو تم اپنے آپ کو بیچ دو گے. اگر تم رشوت لیتے ہو تو تمہاری پہچان بھی یہی ہوگی، ایک بکنے والا انسان. حصہ دو، جڑ کی پریشانی اور بے بسی. عطا ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. کیا ہوا؟ اس آدمی کو فلیٹ کرائے پر دے کر
ना किराया देता है ना फोन उठाता है। 6 महीने हो गए हैं अहमद, पूरे 6 महीने। अहमद ने सर झुका लिया। मैं रोज कॉल करता हूँ, तुम्हारे सामने भी किया, अभी भी की, मगर वो जवाब नहीं देता। आज वो धर पर है। किया? अभी? हाँ, मैंने खुद देखा है। अहमद ने गहरी सांस ली। मैं अभी जाकर बात करता हूँ, लेकिन प्लीज मीराल को मत बताना। दरवाजे पर दस्तक। जी अहमद साहिब, 2 काले मिस हो गई तो सीधा धर आ गए। अगर अब कॉल उठा लेते तो मुझे यहाँ आने की जरूरत ना पड़ती। आजकल फोन और दरवाजे में फर्क ही किया रह गया है। खैर, क्या काम है? अब जानते हैं मैं क्यों आया हूँ। ओ, वही किराया वाला मसला। वो हंसा। बस 6 महीने का किराया है, देखूंगा। अंकल, अब पिछले 6 महीने से यही कह रहे हैं। अब बेहतर यही है कि अब हिसाब साफ कर दी, वरना हमें कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ओ, कानून? वो करीब आया और धीमी आवाज में बोला, मुझे कानून खरीदना आता है। बाबा, हमें केस करना चाहिए। मीराल, अंदर जाओ, अहमद ने सख्ती से कहा। मैं संभाल लूंगा। ओ। मीराल चली जाती है, मगर आंखों में गुस्सा वाज़े है। अहमद साहिब, ये फ्लैट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसे लेने का फैसला कर लिया तो अब सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे। हिस्सा 3, मोहब्बत और एहसास कमतरी। अहमद, तुम बदल गए हो। कैसे? तुम बार बार माजी की बात करते हो, जैसे मैंने कुछ खो दिया हो। ऐसा नहीं है, बस कभी कभी सोचता हूं कि तुम पहले कितनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, और अब तुम मेरे साथ हो और मुश्किलात बर्दाश्त कर रही हो। अता की आंखें नम हो गई। कभी कभी लगता है मेरे प्यार में ही कमी है, इसीलिए तुम माजी को नहीं भूल पाते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम पुलिस के पास किए नहीं जाते। वो आदमी बहुत ताकतवर है। मुझे डर है वो फ्लैट पर कब्जा ना कर ले, खुदा ना करे। हिस्सा 4, दादी जान और मोहब्बत की शुरुआत। दादी जान, आज कुछ अजीब हुआ। क्या हुआ? पहली बार किसी ने मुझे मुतासर किया। ओ, लड़की थी? जी। ओ, नाम क्या है? कहाँ रहती है? मैं अभी रिश्ता लेकर जाती हूँ। दादी जान, वो हंसा। मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। बेटा, यही तो मोहब्बत की पहली निशानी होती है। ये मोहब्बत नहीं है, बस वो अच्छी लगी। तुम्हें अभी एहसास नहीं, लेकिन बाद में होगा कि कुछ बदल चुका है। हिस्सा 5, इंतकाम की आग। इसने मुझे ठुकरा दिया, तो अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इसे तकलीफ में देखना। क्या तुम चाहते हो मैं इसे खत्म कर दूं? नहीं, ये आसान रास्ता है। मैं इसे तड़पता देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। हिस्सा 6, मीराल का ख्वाब। बाबा ना, क्या हुआ? मुझे खान ग्रुप से इंटरव्यू कॉल आ गई। सच? हाँ, और अब सब ठीक हो जाएगा। मैं सब संभाल लूंगी। ओ। हिस्सा 7, सच का खौफ। अहमद, अगर इसे सच पता चल गया तो वो हमें पहचान भी नहीं पाएगा। ओ, अगर पहचान लिया तो हम संभाल लेंगे। हिस्सा 8, इंटरव्यू का दचका। मेरा नाम मीराल अहमद है। मेरी मीटिंग है। मैडम, आपकी मीटिंग कैंसिल हो गई है। ये कैसे हो सकता है? मुझे खुद ही ईमेल आई है। हम किसी और को रख चुके हैं। ये क्या मजाक है? ये प्रोफेशनल रवैया है। बराह करम शोर ना करे, मैं सच सामने लाकर रहूंगी। हिस्सा 9, पहली मुलाकात, किस्मत का खेल। अब का कार्ड गिर गया था। रख ले, अब मुझे किसी कंपनी में काम नहीं करना। अब यहाँ की हैं। हाँ, और मैं भी इंटरव्यू के लिए आया था, मगर हुआ कुछ नहीं। मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगी और मुझे एक अच्छा मार्केटिंग बंदा चाहिए होगा। मैं तैयार हूं। पहले इंटरव्यू होगा।
नाम अली, हिस्सा 10, बस वाला सीन, ताल्लुक की शुरुआत। किराया निकालो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो बस में के बैठे हो? ये लो, इसका किराया मैं दे देती हूँ। अली हैरान हो गया। आपने क्यों दिया? क्योंकि अभी इंसानियत जिंदा है। हिस्सा 11, नया रिश्ता, नई उम्मीद। ये मेरा नंबर है, कॉल कर लेना। अब वाकई मुझे जवाब देगी। अगर तुम काबिल हुए तो मैं इंतजार करूंगा। और मैं फैसला करूंगी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। किस्मत खामोशी से एक नया बाब लिख रही है। ताकत, गुरूर और वार्निंग। ये सब क्या हो रहा है? अली खान, तुम हद पार कर रहे हो। अली खान ने कुर्सी से उठते हुए ठंडी मगर खतरनाक आवाज में कहा। हद तो तुमने पार की है मुख। ये मेरी तरफ से तुम्हारी पहली और आखिरी वार्निंग है। मैं अपनी माँ के नाम पर बनाई गई चैरिटी को किसी की जाती लड़ाई साजिश का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, तुम बिलावजा इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम? अली खान हल्का सा मुस्कुराया, मगर इसकी आंखों में सख्ती बढ़ गई। एक बात हमेशा याद रखना, जन्म में कोई रिश्ता नहीं होता, ना भाई, ना दोस्त, ना खानदान। जंग सिर्फ सामने से लड़ी जाती है। आंखों में आंखें डालकर वो करीब आया। और तुम क्या कर रहे हो? सायों में छप कर वार। ये किसी इज्जतदार घराने के लोगों का तरीका नहीं होता। अली खान, अपनी आवाज नीची रखो। आवाज? तुम अभी आवाज की बात कर रहे हो। वो हंसा मगर तंजिया अंदाज में। तुम इस खेल का सबसे कमजोर मोहरा हो मुख, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने किससे दुश्मनी ले ली है। लोग कहते हैं तुम ताकतवर हो, हुकूमतें बना और गिरा सकते हो। कहते नहीं, जानते हैं। तो शायद मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हारे साथ हाथ मिला लूं, बजाय तुम्हारे खिलाफ खड़े होने के। अली खान की आंखें तंग हो गई। तो तुम अपने आप को बीच दोगे? अगर तुम रिश्वत लेते हो तो तुम्हारी पहचान भी यही होगी, एक बकने वाला इंसान। हिस्सा 2, जड़ की परेशानी और बेबसी। अतः हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? इस आदमी को फ्लैट किराए पर देकर ना किराया देता है, ना फोन उठाता है। 6 महीने हो गए हैं अहमद, पूरे 6 महीने। अहमद ने सर झुका लिया। मैं रोज कॉल करता हूं, तुम्हारे सामने भी किया, अभी भी की, मगर वो जवाब नहीं देता। आज वो धर पर है। किया? अभी? हाँ, मैंने खुद देखा है। अहमद ने गहरी सांस ली। मैं अभी जाकर बात करता हूं, लेकिन प्लीज मीराल को मत बताना। दरवाजे पर दस्तक। जी अहमद साहिब, 2 काले मिस हो गई तो सीधा धर आ गए। अगर अब कॉल उठा लेते तो मुझे यहां आने की जरूरत ना पड़ती। आजकल फोन और दरवाजे में फर्क ही किया रह गया है। खैर, क्या काम है? अब जानते हैं मैं क्यों आया हूं। ओ, वही किराया वाला मसला। वो हंसा। बस 6 महीने का किराया है, देखूंगा। अंकल, अब पिछले 6 महीने से यही कह रहे हैं। अब बेहतर यही है कि अब हिसाब साफ कर दी, वरना हमें कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ओ, कानून? वो करीब आया और धीमी आवाज में बोला, मुझे कानून खरीदना आता है। बाबा, हमें केस करना चाहिए। मीराल, अंदर जाओ, अहमद ने सख्ती से कहा। मैं संभाल लूंगा। मीराल चली जाती है, मगर आंखों में गुस्सा वाज़े है। अहमद साहिब, ये फ्लैट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसे लेने का फैसला कर लिया तो अब सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे। हिस्सा 3, मोहब्बत और एहसास कमतरी। अहमद, तुम बदल गए हो। कैसे? तुम बार बार माजी की बात करते हो, जैसे मैंने कुछ खो दिया हो। ऐसा नहीं है, बस कभी कभी सोचता हूं कि तुम पहले कितनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, और अब तुम मेरे साथ हो और मुश्किलात बर्दाश्त कर रही हो। अता की आंखें नम हो गई। कभी कभी लगता है मेरे प्यार में ही कमी है।
इसीलिए तुम माजी को नहीं भूल पाते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम पुलिस के पास किए नहीं जाते। वो आदमी बहुत ताकतवर है। मुझे डर है वो फलेट पर कब्जा ना कर ले, खुदा ना करे। हिस्सा 4, दादी जान और मोहब्बत की शुरुआत। दादी जान, आज कुछ अजीब हुआ। क्या हुआ? पहली बार किसी ने मुझे मुतासर किया। ओ, लड़की थी। जी। ओ, नाम क्या है? कहाँ रहती है? मैं अभी रिश्ता लेकर जाती हूँ। दादी जान, वो हंसा। मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। बेटा, यही तो मोहब्बत की पहली निशानी होती है। ये मोहब्बत नहीं है, बस वो अच्छी लगी। तुम्हें अभी एहसास नहीं, लेकिन बाद में होगा कि कुछ बदल चुका है। हिस्सा 5, इंतकाम की आग। इसने मुझे ठुकरा दिया, तो अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इसे तकलीफ में देखना। क्या तुम चाहते हो मैं इसे खत्म कर दूं? नहीं, ये आसान रास्ता है। मैं इसे तड़पता देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। हिस्सा 6, मीराल का ख्वाब। बाबा ना, क्या हुआ? मुझे खान ग्रुप से इंटरव्यू कॉल आ गई। सच? हाँ, और अब सब ठीक हो जाएगा। मैं सब संभाल लूंगी। ओ। हिस्सा 7, सच का खौफ। अहमद, अगर इसे सच पता चल गया तो वो हमें पहचान भी नहीं पाएगा। ओ, अगर पहचान लिया तो हम संभाल लेंगे। हिस्सा 8, इंटरव्यू का दचका। मेरा नाम मीराल अहमद है। मेरी मीटिंग है। मैडम, आपकी मीटिंग कैंसिल हो गई है। ये कैसे हो सकता है? मुझे खुद ही ईमेल आई है। हम किसी और को रख चुके हैं। ये क्या मजाक है? ये प्रोफेशनल रवैया है। बराह करम शोर ना करे। मैं सच सामने लाकर रहूंगी। हिस्सा 9, पहली मुलाकात, किस्मत का खेल। अब का कार्ड गिर गया था। रख ले। अब मुझे किसी कंपनी में काम नहीं करना। अब यहाँ की हैं। हाँ, और मैं भी इंटरव्यू के लिए आया था, मगर हुआ कुछ नहीं। मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगी और मुझे एक अच्छा मार्केटिंग बंदा चाहिए होगा। मैं तैयार हूं। पहले इंटरव्यू होगा। नाम अली। हिस्सा 10, बस वाला सीन, ताल्लुक की शुरुआत। किराया निकालो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो बस में के बैठे हो? ये लो, इसका किराया मैं दे देती हूं। अली हैरान हो गया। आपने क्यों दिया? क्योंकि अभी इंसानियत जिंदा है। हिस्सा 11, नया रिश्ता, नई उम्मीद। ये मेरा नंबर है, कॉल कर लेना। अब वाकई मुझे जवाब देगी। अगर तुम काबिल हुए तो मैं इंतजार करूंगा। ओ, और मैं फैसला करूंगी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। किस्मत खामोशी से एक नया बाब लिख रही है। ताकत, गुरूर और वार्निंग। ये सब क्या हो रहा है? अली खान, तुम हद पार कर रहे हो। अली खान ने कुर्सी से उठते हुए ठंडी मगर खतरनाक आवाज में कहा। हद तो तुमने पार की है मुख। ये मेरी तरफ से तुम्हारी पहली और आखिरी वार्निंग है। मैं अपनी माँ के नाम पर बनाई गई चैरिटी को किसी की जाती लड़ाई साजिश का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, तुम बिलावजा इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम? अली खान हल्का सा मुस्कुराया, मगर इसकी आंखों में सख्ती बढ़ गई। एक बात हमेशा याद रखना, जन्म में कोई रिश्ता नहीं होता, ना भाई, ना दोस्त, ना खानदान। जंग सिर्फ सामने से लड़ी जाती है, आंखों में आंखें डालकर। वो करीब आया। और तुम क्या कर रहे हो? सायों में छप कर वार। ये किसी इज्जतदार घराने के लोगों का तरीका नहीं होता। अली खान, अपनी आवाज नीची रखो। आवाज? तुम अभी आवाज की बात कर रहे हो। वो हंसा मगर तंजिया अंदाज में। तुम इस खेल का सबसे कमजोर मोहरा हो मुख, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने किससे दुश्मनी ले ली है। लोग कहते हैं तुम ताकतवर हो, हुकूमतें बना और गिरा सकते हो। कहते नहीं, जानते हैं।
तो शायद मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हारे साथ हाथ मिला लूं बजाय तुम्हारे खिलाफ खड़े होने के। अली खान की आंखें तंग हो गई। तो तुम अपने आप को बीच दोगे? अगर तुम रिश्वत लेते हो तो तुम्हारी पहचान भी यही होगी, एक बकने वाला इंसान। हिस्सा 2, जड़ की परेशानी और बेबसी। अतः हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? इस आदमी को फ्लैट किराए पर देकर ना किराया देता है ना फोन उठाता है। 6 महीने हो गए हैं अहमद, पूरे 6 महीने। अहमद ने सर झुका लिया। मैं रोज कॉल करता हूं, तुम्हारे सामने भी किया, अभी भी की, मगर वो जवाब नहीं देता। आज वो घर पर है। किया? अभी? हाँ, मैंने खुद देखा है। अहमद ने गहरी सांस ली। मैं अभी जाकर बात करता हूं, लेकिन प्लीज मीराल को मत बताना। दरवाजे पर दस्तक। जी अहमद साहिब, 2 कालें मिस हो गई तो सीधा घर आ गए। अगर अब कॉल उठा लेते तो मुझे यहां आने की जरूरत ना पड़ती। आजकल फोन और दरवाजे में फर्क ही किया रह गया है। खैर, क्या काम है? अब जानते हैं मैं क्यों आया हूं। ओ, वही किराया वाला मसला। वो हंसा। बस 6 महीने का किराया है, देखूंगा। अंकल, अब पिछले 6 महीने से यही कह रहे हैं। अब बेहतर यही है कि अब हिसाब साफ कर दी, वरना हमें कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ओ, कानून? वो करीब आया और धीमी आवाज में बोला, मुझे कानून खरीदना आता है। बाबा, हमें केस करना चाहिए। मीराल, अंदर जाओ, अहमद ने सख्ती से कहा। मैं संभाल लूंगा। मीराल चली जाती है, मगर आंखों में गुस्सा वाज़े है। अहमद साहिब, ये फ्लैट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसे लेने का फैसला कर लिया तो अब सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे। हिस्सा 3, मोहब्बत और एहसास कमतरी। अहमद, तुम बदल गए हो। कैसे? तुम बार बार माजी की बात करते हो, जैसे मैंने कुछ खो दिया हो। ऐसा नहीं है, बस कभी कभी सोचता हूं कि तुम पहले कितनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, और अब तुम मेरे साथ हो और मुश्किलात बर्दाश्त कर रही हो। अता की आंखें नम हो गई। कभी कभी लगता है मेरे प्यार में ही कमी है, इसीलिए तुम माजी को नहीं भूल पाते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम पुलिस के पास किए नहीं जाते। वो आदमी बहुत ताकतवर है। मुझे डर है वो फ्लैट पर कब्जा ना कर ले, खुदा ना करे। हिस्सा 4, दादी जान और मोहब्बत की शुरुआत। दादी जान, आज कुछ अजीब हुआ। क्या हुआ? पहली बार किसी ने मुझे मुतासिर किया। ओ, लड़की थी? जी। ओ, नाम क्या है? कहाँ रहती है? मैं अभी रिश्ता लेकर जाती हूं। दादी जान, वो हंसा। मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। बेटा, यही तो मोहब्बत की पहली निशानी होती है। ये मोहब्बत नहीं है, बस वो अच्छी लगी। तुम्हें अभी एहसास नहीं, लेकिन बाद में होगा कि कुछ बदल चुका है। हिस्सा 5, इंतकाम की आग। इसने मुझे ठुकरा दिया, तो अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इसे तकलीफ में देखना। क्या तुम चाहते हो मैं इसे खत्म कर दूं? नहीं, ये आसान रास्ता है। मैं इसे तड़पता देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। हिस्सा 6, मीराल का ख्वाब। बाबा ना, क्या हुआ? मुझे खान ग्रुप से इंटरव्यू कॉल आ गई। सच? हाँ, और अब सब ठीक हो जाएगा। मैं सब संभाल लूंगी। हिस्सा 7, सच का खौफ। अहमद, अगर इसे सच पता चल गया तो वो हमें पहचान भी नहीं पाएगा। अगर पहचान लिया तो हम संभाल लेंगे। हिस्सा 8, इंटरव्यू का दचका। मेरा नाम मीराल अहमद है। मेरी मीटिंग है। मैडम, आपकी मीटिंग कैंसिल हो गई है। ये कैसे हो सकता है? मुझे खुद ही ईमेल आई है। हम किसी और को रख चुके हैं। ये क्या मजाक है? ये प्रोफेशनल रवैया है। बराह करम शोर ना करे।
मैं सच सामने लाकर रहूंगी। हिस्सा 9, पहली मुलाकात, किस्मत का खेल। अब का कार्ड गिर गया था। रख ले, अब मुझे किसी कंपनी में काम नहीं करना। अब यहाँ की हैं। हाँ, और मैं भी इंटरव्यू के लिए आया था, मगर हुआ कुछ नहीं। मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगी और मुझे एक अच्छा मार्केटिंग बंदा चाहिए होगा। मैं तैयार हूं। पहले इंटरव्यू होगा। नाम अली, हिस्सा 10, बस वाला सीन, ताल्लुक की शुरुआत। किराया निकालो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो बस में के बैठे हो। ये लो, इसका किराया मैं दे देती हूँ। अली हैरान हो गया। आपने क्यों दिया? क्योंकि अभी इंसानियत जिंदा है। हिस्सा 11, नया रिश्ता, नई उम्मीद। ये मेरा नंबर है, कॉल कर लेना। अब वाकई मुझे जवाब देगी। अगर तुम काबिल हुए तो मैं इंतजार करूंगा। और मैं फैसला करूंगी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। किस्मत खामोशी से एक नया बाब लिख रही है।